Welcome back everyone to part 2 of fixed overhead cost variances. What we saw in part 1 was the derivation of the formulas and logic behind the formulas for calculating fixed overhead cost variances. In part 2 of this topic, we are going to cover a few of the examples, or you can say few of the sums regarding how to calculate fixed overhead cost variances. Let us jump on to those sums directly without wasting any further time. Okay, so here we go. Question 1. Calculate fixed overhead variances. Standard output for 40 hours per week is 1400 units. Standard fixed cost overheads, that is budgeted fixed overhead cost, is rupees 1400. Actual output in terms of unit is mentioned. Actual hours worked is also mentioned, is 32 hours per week, and actual fixed overheads is what is given to us. So let us start. First we will calculate SRR per unit. SRR per unit is equal to budgeted cost divided by budgeted output, which is equal to 1400. So this answer comes out to be rupee 1 per unit. Secondly, what we need is SRR per hour is equal to budgeted fixed overheads, that is rupees 1400 divided by budgeted hours per week. 40 hours is what is budgeted hours, and that is exactly what we need over here. 40. It comes out to rupees 35 per hour. Okay. Now, first variance, fixed overhead cost variance is equal to SRR per unit into actual output minus actual fixed overhead incurred, okay, which is equal to SRR per unit rupees 1 into 1200 units minus rupees 1500. It comes out to be 300 adverse. हमने प्लान किया था कि 1200 यूनिट बनाने के लिए हमें टोटल 1200 रुपए लगेंगे, पर एक्चुअल में 1500 रुपए का कॉस्ट इनकर करना पड़ा, तो 300 रुपए हिसाब से ज्यादा इनकर किया, इसलिए 300 एडवर्स. सेकेंड वेरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, विच इज इक्वल टू budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads, which is equal to 1400 minus 1500. That comes out to be 100 adverse. बजट 1400 का किया था, असलियत में 1500 इनकर किया, तो 100 रुपए अंदाज से ज्यादा इनकर हुआ, इसलिए 100 रुपए एडवर्स. थर्ड वन इज fixed overhead volume variance, which is equal to SRR per unit budgeted out minus actual output, which is equal to rupee 1, 1400 minus 1200 unit, 200 adverse. बजट किया था 1400 यूनिट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, असलियत में 1200 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर पाए, तो 200 यूनिट कम मैन्युफैक्चर हो पाया हमारे अंदाज से, तो 200 into 1, 200 रुपीज एडवर्स. नेक्स्ट व्हाट इज नाउ, अभी फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के दो पार्ट हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. सो फिक्स्ड ओवरहेड capacity variance is equal to SRR per hour budgeted hours minus actual hours, which is equal to 35, 40 minus 32, which comes out to be 40 minus 32 into 35, 280 adverse. Fixed overhead efficiency variance is equal to SRR per hour standard hours for actual output minus actual hours. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं हम?
1400 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 40 घंटे लगे, तो 1200 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 35 इंटू 1200 इंटू 40 divided by 1400 minus actual hours, that is 32 hours. 1200 into 40 divided by 1400, which comes out to be somewhere in decimals, 34.2857 minus 32, राउंड ऑफ करेंगे तो 80 रुपीज फेवरेबल आ जाएगा। 80 रुपीज फेवरेबल कैसे? 34 स्टैंडर्ड लगना चाहिए था 1200 यूनिट के लिए, पर वही काम हमने 32 घंटे में किया, तो फेवरेबल वेरिएंस आ गया। नाउ अगर आप यहां पे देखोगे 280 एडवर्स प्लस 80 फेवरेबल गिव्स अस 200 एडवर्स, और ये दोनों का अगर टोटल ले 200 एडवर्स प्लस 100 एडवर्स इज इक्वल टू 300 एडवर्स, सम टैली हो गया है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, SRR पर यूनिट, बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, रुपीज 1.5 पर यूनिट, SRR per hour, budgeted cost divided by budgeted hours, 20,000। क्लियरली टेबल में दिया हुआ है, ये बजट है और ये एक्चुअल डेटा है। बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है, घंटे दिए हुए हैं और कॉस्ट दी हुई है हमें। तो ये तीनों चीजें इस्तेमाल करके हमने SRR पर आवर और SRR पर यूनिट निकाल लिए हैं। 15,000 divided by 20,000, which comes out to be 0.75 per hour. Okay, now first fixed overhead cost variance is equal to SRR per unit into actual output minus actual fixed overhead incurred. SRR per unit कितना है? 1.5, एक्चुअल आउटपुट 12,000 यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, ये यहाँ पे, माइनस एक्चुअल ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड, ये 20,000 आ गए। 18,000 माइनस 20,000, 12,000 बनाने का स्टैंडर्ड 18,000 कॉस्ट होना चाहिए था, इनकर किया 20,000, 2,000 ज्यादा इनकर किया, 2,000 एडवर्स। सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, 15,000 माइनस 20,000, सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे 5,000 एडवर्स। चाहिए तो फॉर्मूला भी रिपीट कर सकते हो, वैसे रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं, फॉर्मूला इसका बहुत इजी है। थर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका रिपीट करेंगे चाहिए तो। SRR पर यूनिट, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, रुपीज 1.5, 10,000 माइनस 12,000। एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, अच्छी बात है, 3,000 फेवरेबल आएगा। क्रॉस टैली करके देख लीजिए, 5,000 एडवर्स प्लस 3,000 फेवरेबल कम्स आउट टू बी 2,000 एडवर्स। इसका एडिशन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से मैच होना चाहिए, यहाँ पे मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर वॉल्यूम वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एक मिनट सॉरी, capacity variance is equal to
SRR per hour, budgeted hours minus actual hours. SRR per hour हमें पता है 0.75 है, budgeted hours भी हमें पता है 20,000 माइनस 22,000 माइनस, यहाँ पे फेवरेबल आएगा क्योंकि बजट 20,000 का किया था, एक्चुअल 22,000 घंटे यूटिलाइज किए हमने, बजटेड कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी पे काम किया। मैनेजमेंट के लिए हमारा परफॉर्मेंस फायदेदायक है, अच्छा है। उनको हमने जो 2,000 घंटे काम किया है उससे फायदा हुआ है, जो हमें यहाँ पे फेवरेबल वेरिएंस के तौर पे दिख रहा है, तो ये वेरिएंस भी फेवरेबल ही होगा। $0.75 into 2,000, $1,500 फेवरेबल। अगर यही आंसर क्रॉस टैली करना चाहते हैं तो अभी एफिशिएंसी वेरिएंस भी 1,500 फेवरेबल आने वाला है, चेक कर लेते हैं। Efficiency variance is equal to SRR per hour, standard hours minus actual hours, standard hours for actual output। कैसे निकालते हैं, पिछले सम में भी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। 0.75, ये 8 दिख रहा है क्या, 75 या 5 ही दिख रहा है अभी। 12,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 20,000। 10,000 यूनिट बनाने के लिए 20,000 घंटे लगते हैं, तो 12,000 बनाने के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्टेप है वही आएगा। ओके, माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 22,000, which is equal to 0.75 24,000 माइनस 22,000। स्टैंडर्ड 24,000 घंटे लगने चाहिए थे 12,000 यूनिट बनाने के लिए, हमें लगे 22,000। एस्टिमेटेड टाइम से हमने कम टाइम लिया, उतने ही यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी एफिशिएंसी ज्यादा दिखी है यहाँ पे, तो ये वेरिएंस भी फेवरेबल होगा। 1,500 फेवरेबल, आंसर इज टैलीड। क्रॉस चेक इफ यू वांट। 1,500 प्लस 1,500 फेवरेबल, 3,000 फेवरेबल यहाँ पे आ रहा है। 3,000 फेवरेबल प्लस 5,000 एडवर्स, 2,000 एडवर्स यहाँ पे भी आ रहा है। ये हुआ सम कंप्लीट। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। अभी इस सम में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे डेज दिए हुए हैं। ओके, तो पहले रिक्वायर्ड डेटा हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। बजटेड कॉस्ट निकाल लेंगे हम, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हमको निकालने हैं। 4,000 घंटे दिए हैं, एक घंटे में 50 पैसे की कॉस्ट इनकर होती है, तो 4,000 घंटे में कितने की कॉस्ट इनकर होगी, 4,000 इंटू 50 पैसे, 4,000 आवर्स इंटू ₹0.5 पर आवर, विच इज इक्वल टू ₹2,000। तो बजटेड कॉस्ट आ गई हमारी 2,000। अभी बजटेड आउटपुट निकालते हैं। बजटेड आउटपुट, क्योंकि अगर आप देखेंगे आउटपुट यहाँ पे किधर कहीं पे दिया ही नहीं है हमें। एक्चुअल आउटपुट दिया है, बजटेड दिया ही नहीं है। एक्चुअल डेज दिए हैं, बजटेड डेज दिए हैं। एक्चुअल कॉस्ट दी है, बजटेड कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल ली। एक्चुअल आवर्स दिए हैं, बजटेड आवर्स दिए हैं। तो दो चीजें उन्होंने हमें नहीं दी थी, बजटेड कॉस्ट और बजटेड आउटपुट। बजटेड कॉस्ट निकाल लिया है, बजटेड आउटपुट अभी निकाल रहे हैं। बजटेड आउटपुट इज बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। बजटेड आवर्स हमें दिए हुए हैं 4,000 और स्टैंडर्ड मैन आवर्स पर यूनिट हमें दिए हैं 10। स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, इट शुड बी आवर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आवर्स। 10 यूनिट पर आवर डिवाइडेड बाय 10, इट कम्स आउट टू बी 400
यूनिट्स। ओके, सो ये रॉ डेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया है। इतना ही हमें डेटा लगेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा पेज है क्या हमारे लिए? नहीं तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे प्रीवियस, यहाँ पे ही लिखते हैं सॉल्यूशन। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SRR per unit into actual output माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। SRR पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। 2000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू एक्चुअल आउटपुट 425 का है माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट 1800 हमने इनकर की है। 2000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 425 कम्स आउट टू बी 2125 माइनस 1800, 325 फेवरेबल आता है। सेकेंड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सीधा सीधा फॉर्मूला न लिखते हुए भी निकाल सकते हैं। बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो वो आएगा मेरे ख्याल से 2000 माइनस 1800, 200 फेवरेबल ही आएगा। अब अगर यहाँ पे हम अंदाजा ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट वेरिएंस 325 फेवरेबल है एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज 200 फेवरेबल। इफ यू अप्लाई बेसिक मैथमेटिकल रूल्स, वॉल्यूम वेरिएंस शुड कम आउट टू बी 125 फेवरेबल। लेट अस चेक। 3 वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू SRR पर यूनिट बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। बजटेड आउटपुट हमारा है 400, एक्चुअल आउटपुट है 25, हमारे लिए अच्छा है। 25 यूनिट हमने ज्यादा मैन्युफैक्चर किए बजट से, इनटू SRR पर यूनिट। SRR पर यूनिट हमारा कितना है? SRR पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है? हमने यहाँ पे निकाला है 2000 डिवाइडेड बाय 400। 2000 डिवाइडेड बाय 400 rupees 5, so 125 into rupees 5 per unit comes out to be 125 favorable. Okay, so ये रहा क्रॉस चेक। 125 फेवरेबल प्लस 200 फेवरेबल शुड बी 300 फेवरेबल। ये यहाँ पे 325 फेवरेबल, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो दीज 3 वेरिएंसेस आर करेक्ट। अभी हमें यहाँ पे बजटेड और एक्चुअल वर्किंग डेज दिए हैं। सो फर्दर वॉल्यूम वेरिएंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इंस्टेड ऑफ 2। तीसरा पार्ट आ जाएगा कैलेंडर वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। लिखते हैं एक बार वापस से। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू 125 फेवरेबल। इसके 3 पार्ट होंगे, एक कैलेंडर वेरिएंस, एक कैपेसिटी और दूसरा एफिशिएंसी। तीसरा माने एफिशिएंसी वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SRR पर डे इनटू बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज वर्कड इज इक्वल टू SRR पर डे नहीं निकाला था, 2 मिनट में यहाँ पे निकाल लेते हैं। बजटेड डेज कितने थे? 20। टोटल कॉस्ट कितना था? 2000। तो SRR पर डे कितना आना चाहिए? 2000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 22 which comes out to be 120 माइनस 22। हमने बजट 20 दिन काम करने का सोचा था, हमने 22 दिन काम किया। हमारे लेबर्स
अच्छी तरह से प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, कैपेसिटी उनकी काम करने की ज्यादा है दिन के अनुसार, विच इज इक्वल टू 200 फेवरेबल. ओके, 2 into 100 200 फेवरेबल. नेक्स्ट कैपेसिटी वेरिएंस. कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SRR पर आर इनटू, थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ा जाएगा यहाँ पे, इसलिए पार्टीशन पहले ही बना लेते हैं. SRR per hour into budgeted hours for actual working days minus actual hours worked. ओके, अभी बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटी के साथ साथ यहाँ पे और एक वेरिएंस ऐड हो गया है, कैलेंडर वेरिएंस. अगर हम यहाँ पे बजटेड डेज फॉर एक्चुअल वर्किंग आवर्स लेने की जगह सिर्फ बजटेड आवर्स ले लेते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि बजटेड डेज हम जब कैलेंडर वेरिएंस में कैलकुलेट करते हैं तब डेज में बजटेड आवर्स फॉर बजटेड डेज ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है. तो अगर हम सिर्फ बजटेड आवर्स कंसिडर करते हैं तो वो 2 बार कंसिडर होगा, और 2 बार कंसिडर होने के कारण उसका डबल इफेक्ट चला जाएगा, वो यहाँ पे टैली नहीं दिखाएगा. इसलिए हमें बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे. अभी आप सोच रहे होंगे कि बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे. तो 20 दिन में 4000 घंटे काम किया, तो 22 दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए था, वो कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. SRR पर आर हमारे पास पहले से है ही. SRR पर आर कितना है हमारा? SRR पर आर, अच्छा इस पर यूनिट निकाला था क्या? ठीक है, अभी निकाल लेते हैं. SRR पर आवर इज इक्वल टू टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, विच इज इक्वल टू टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज. कैसे निकालेंगे? माइनस एक्चुअल आवर्स, कितने काम किया हमने? 4300 घंटे. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया? ये कोई मैजिक से आंसर नहीं आता, बेसिक मैथमेटिकल रूल है. 20 दिन में अगर 4000 घंटे काम किया हो तो 22 दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, आंसर आपको मिल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 4400. ओके, और ये आएगा 0.5. 4400 माइनस 4300. अभी ये वेरिएंस एडवर्स आएगा क्योंकि हमारी कैपेसिटी हमने 100 घंटे से कम इस्तेमाल की. हमने प्लान किया था कि 4400 घंटे काम करेंगे, असलियत में काम किया 4300 घंटे, मतलब 100 घंटे एस्टिमेट से हमने कम काम किया है, तो ये एडवर्स आ जाएगा. इज इक्वल टू 0.5 into 100. आंसर इज टू बी एडवर्स, which is equal to 50 adverse. Okay, 50 adverse. आगे efficiency variance is equal to SRR per hour into standard hours for actual output minus actual output. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट वापस सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही निकालेंगे. SRR पर आवर हमें मिला है. ओके, नाउ स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे? अगर 400 यूनिट बनाने के लिए 4000 घंटे लगते हैं, 425 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए? 425 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 400 माइनस एक्चुअल आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, एक्चुअल आवर्स आएगा, माइनस एक्चुअल आवर है 4300. तो आंसर क्या आएगा? 425 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 0.54250 माइनस 4300. 50 घंटे हमें ज्यादा लगे उतने ही एस्टिमेटेड यूनिट बनाने के लिए, तो ये वेरिएंस एडवर्स आएगा.
कितना एडवर्स आएगा, 50 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 25 एडवर्स आएगा। टोटलिंग कर लेते हैं एनालिसिस के लिए, टैली हो रहा है कि नहीं। 25 एडवर्स प्लस 50 एडवर्स प्लस 200 फेवरेबल शुड कम आउट टू बी 125 फेवरेबल, जो यहाँ पे आ रहा है 125 फेवरेबल। मतलब हमारा ये कैलकुलेट किया हुआ आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक बार चाहिए तो वापस स्टेप्स देख लेते हैं हमने क्या किया। पहले बजटेड कॉस्ट नहीं दी थी, वो कैलकुलेट कर ली। बजटेड आउटपुट भी नहीं दिया था, कैलकुलेट कर लिया। उस बेसिस पे हमें बेसिक 3 वेरिएंस मिल गए, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। आगे वॉल्यूम वेरिएंस के 3 पार्ट किए हमने, एक कैलेंडर, एक कैपेसिटी और एक एफिशिएंसी। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला SRR पर डे इंटू बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज। SRR पर डे निकाल लिया, बजटेड डेज दिए हुए थे, एक्चुअल डेज दिए हुए थे। सेकंड कैपेसिटी वेरिएंस, SRR पर आर इंटू बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज। ये क्यों किया, अगर सिर्फ बजटेड आवर्स लेते तो बजटेड आवर्स तो यहाँ पे कंसिडर हो चुके थे उतने दिन के लिए, तो हमें एक्चुअल दिन के लिए लेने थे। क्योंकि अगर सिर्फ बजटेड आवर्स लेते तो 2 बार कंसिडर होते, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उसका डबल इफेक्ट चला जाता जो गलत होता। तो हमें सिर्फ एक ही इफेक्ट लेना है, जो कि एक इफेक्ट किससे आएगा, इफ वी कंसिडर बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज ओनली। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो फॉर्मूला आया SRR पर आर इंटू बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। उससे आंसर मिल गया। थर्ड वेरिएंस, सब वेरिएंस कैलकुलेट किया वॉल्यूम का, एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से मतलब इंटरमीडिएट से। SRR पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया, सीधा लॉजिक लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इतना हाई लेवल का इंटेलेक्ट इसको नहीं लगता, सिंपल है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आई होप दिस इज क्लियर। अभी ये सम दिखने में जितना बड़ा लगता है उससे बहुत आसान है, सो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। इतना बड़ा सम कैसे सॉल्व होगा, सम दिखने में बड़ा है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना है हमें। क्या दिया है, बजटेड नंबर, बजटेड डेटा दिया है, वर्किंग डेज दिया है, मतलब कैलेंडर आएगा और कैपेसिटी आएगा। तो वापस हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। आवर्स पर वीक दिया है, नंबर ऑफ डेज दिया है, ओके, नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स हमें दिए हैं, एफिशिएंसी दिया है। इसका मतलब क्या है हम बाद में देखेंगे, रिलेवेंट है या नहीं आप अभी दिमाग में सोच लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या लगता है कि इज इट रिलेवेंट और इज इट नॉट, जस्ट थिंक फॉर सम टाइम। डाउन टाइम दिया है 10%, ओवरहेड्स दिए हैं फिक्स्ड और वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं कैलकुलेट करना है, ये हटा दीजिए, ये नहीं देखा तो भी चलेगा। आज सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस पे फोकस करना है, वेरिएबल का कैलकुलेशन पहले के वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो प्लीज गो टू माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो इफ नॉट। ओके, ये एक्चुअल डेटा दिया है, ओवरहेड फिक्स दिए हैं, नेट ऑपरेटिंग आवर्स वर्क दैट इज एक्चुअल आवर्स, और क्या दिया है, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, आप बोलेंगे हम घंटे तो मैन्युफैक्चर नहीं करते तो प्रोड्यूस क्यों दिया है। जनरली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल लैंग्वेज आवर्स वर्कड को आवर्स प्रोड्यूस्ड भी कहते हैं। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स कितने काम करना चाहिए था तो उसको उन्होंने टर्म कॉइन किया है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। अभी की डेटा हमें क्या क्या लगेगा, बजटेड आवर्स लगेंगे। बजटेड आवर्स तो इन्होंने रेडीमेड कहीं पे दिए ही नहीं है, एक्चुअल आवर्स दिए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं। बजटेड आउटपुट दिया है क्या, नहीं दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, मैं वो आपको बाद में समझाता हूं। लेट अस मूव फर्दर। इंपॉर्टेंट डेटा, ओके, यस। अभी मैक्सिमम आज हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, 24 दिन 8 घंटे इंटू 150 आदमी। 24 दिन 8 घंटे
that is 8 hours per day, 24 days into 150 workmen. It comes out to be 28,800 hours. अभी आपको लग रहा होगा कि ये बजटेड आवर्स है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने डाउन टाइम भी दिया है। वर्कर्स को पानी पीने में, फ्रेश रूम जाने में कुछ वक्त लगता है, उसको हम डाउन टाइम कहते हैं। इस टाइम में कोई भी एफिशिएंसी वर्कर की दिखती नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन या रेंडरिंग ऑफ सर्विस इस डाउन टाइम के दौरान होता नहीं है। सो उसमें से लेस डाउन टाइम हमें करना पड़ेगा। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? गलत हो गया। उसमें से डाउन टाइम लेस करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, मैक्सिमम पे ही होगा 2880। तो ये जो आंसर होगा ये हमको होगा, मिल जाएगा बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 25,920। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड दिए हैं हमें, स्टैंडर्ड आवर्स हमें दिए हैं उन्होंने 22,550। एक्चुअल आवर्स भी हमें दिए हैं उन्होंने 2,500। बजटेड डेज दिए हैं 24। अभी पीछे जाके वापस एक बार देखते हैं एक्चुअल डेज दिए हैं कि नहीं। एक्चुअल डेज कहीं पे आपको दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे नहीं दिए। तो उन्होंने क्वेश्चन के एंड में एक लाइन लिखा था, देयर वॉज अ स्पेशल हॉलीडे इन द मंथ। बजट कितना किया था हमने? 24 दिन फैक्ट्री ऑपरेटिंग रहेगी। पर उन्होंने बाद में क्या डिसाइड किया कि स्पेशल हॉलीडे है, कोई तो एमडी, डायरेक्टर, कंपनी के फाउंडर का बर्थडे होगा, तो उन्होंने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो एक्चुअल डेज कितना काम हो पाया हमसे? 23 डेज, दैट इज 24 minus 1. So actual days 24 minus 1, 23 days. So this is the data required. अभी आप सोच रहे होंगे आउटपुट नहीं दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, वरी नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चालू कर देते हैं हम। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस is equal to SRR per unit into स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, एक्चुअल आउटपुट है, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। यहाँ पे एज्यूम्ड है कि फिक्स्ड है, क्योंकि सम से फिक्स्ड के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। SRR पर यूनिट की जगह कैन आई सब्सटीट्यूट SRR पर आवर? यस आई कैन। SRR पर आवर, पर एक्चुअल आउटपुट की जगह आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स, अभी स्टैंडर्ड आवर्स क्यों? एक्चुअल आउटपुट से जो टर्म रिलेट होता है वो स्टैंडर्ड आवर्स इन टर्म्स ऑफ आर, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय SRR पर आर, एक्चुअल आउटपुट को जो कोरिलेट करता है वो सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स ही है। ऐसा अभी आप SRR पर आर इंटू एक्चुअल आवर्स करेंगे तो मैथमेटिकली भी गलत होगा। अगर आप यहाँ पे SRR की जगह ARR ले रहे हैं तो यू कैन राइट हियर एक्चुअल आवर्स। You cannot multiply standard hours, standard rate of recovery per hour by actual hours. You need to multiply the same unit by the same corresponding unit of measurement. That is, अगर standard रुपी है तो आप उसको standard hour या standard रुपी per day से ही multiply कर सकते हो। Actual या average रुपी per day से multiply करके कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, वो आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्चुअल ओवरहेड, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो रुपी टर्म में है, चेंज नहीं होगा। SRR पर आर हमने कैलकुलेट कर लिया है क्या? नहीं किया, अभी कर लेते हैं। SRR पर आर कितना है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स कितना था? 75,400। बजटेड आवर्स कितना था? बजटेड आवर्स था 25,920। ओके, सो SRR पर आर कितना आएगा? 75,400 डिवाइडेड बाय 25,920। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.91, कुछ तो भी ऐसे डॉट 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 आ रहा है, 2.91 कंसिडर कर लेते हैं।
ओके, विच इज इक्वल टू 2.91 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमें मिल चुके हैं 22, क्या हो गया, बड़ा हो गया क्या, 22,550 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना है हमारा 78,800। ये देखिए एक्चुअल कॉस्ट 78, अच्छा 700 है क्या, आई एम सॉरी, इट इज 78,700। जस्ट वेट अ मिनट, इट इज नॉट 78,700, इट इज 78,800 ओनली। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, अगर आपने इस सम लिखा हो तो 78,800 कर दीजिए उसको। ओके, 78,800 विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा 13,179.5। एडवर्स राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा, पर मैं अब राउंडिंग ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, बाद में क्रॉस टैली करने के लिए तकलीफ होती है, किधर राउंड अप करे राउंड डाउन करे, ये दिमाग में चलता रहता है। तो राउंड ऑफ नहीं किया तो भी चलेगा, या आपको चाहिए तो आप कर लो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील। ना एक्सपेंडिचर वेरिएंस सीधा सीधा फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स कितने थे 75,400, एक्चुअल कितने हैं 78,800। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आएगा 75,400 माइनस 78,800, एडवर्स ही आएगा। फेवरेबल लेने का सोचिए मत, ये कैपेसिटी या कैलेंडर वेरिएंस नहीं है जिसमें एक्चुअल ज्यादा हो तो फेवरेबल लेने का। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक्चुअल की फिगर ज्यादा रही तो एडवर्स ही होगा। इट कम्स आउट टू बी 3,400 एडवर्स। अभी ये कैलकुलेट किया, तो अभी वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ हम बढ़ते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस क्या फॉर्मूला लग रहा है आपको? लगने की बात नहीं है, फॉर्मूला लॉजिकल डेवलप करना पड़ेगा। SRR पर यूनिट, वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ा है माइनस एक्चुअल आउटपुट। अभी बजटेड आउटपुट को आप आवर्स पर यूनिट, मेरे पास आउटपुट है क्या क्वेश्चन में दिया हुआ? क्वेश्चन में मेरे पास आउटपुट नहीं है, यहाँ पे किधर भी आउटपुट का मेंशन है क्या? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आवर्स से ही मुझे सम सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा मार्ग, दूसरा पर्याय नहीं है। ये क्या हुआ? SRR पर यूनिट which is equal to SRR per hour. Budgeted output will be substituted by budgeted hours. Actual output will be substituted by स्टैंडर्ड आवर्स, जैसा हमने कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त सब्सटीट्यूट किया था। स्टैंडर्ड आवर्स हमें मिल गए हैं, SRR पर आवर भी हमारे पास रेडी है, बजटेड आवर्स हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं ही। 25,920 माइनस 22,550 विच इज 2 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9,806। क्या हो रहा है ये? 0.5 एडवर्स ही आएगा। ओके, क्योंकि बजट इतना किया था और स्टैंडर्ड हमारा कम लगा, मतलब बजट से स्टैंडर्ड हमारा कम है, तो यहाँ पे वेरिएंस एडवर्स ही आएगा। एक्चुअल से अगर आप कोरिलेट करने जाओगे तो आपको समझेगा, स्टैंडर्ड से कोरिलेट मत करो। बजट हमारा 25 का था, एक्चुअल 22 तक हुआ, एक्चुअल हमारा कम हुआ, तो एडवर्स आने वाला है। अभी क्रॉस टैली करना है तो 9,806.5 एडवर्स प्लस 3,400 एडवर्स कम्स आउट टू बी 13,179.5 एडवर्स। ये सही है मतलब हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरिएंस टू बी कैलकुलेटेड इज कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? SRR पर डे इंटू बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज। बजटेड डेज हमारे पास कितने हैं? बजटेड डेज हैं 24, एक्चुअल डेज है 23। SRR पर डे हमने निकाला नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बजटेड SRR पर डे भी निकाल लेते हैं इधर, बाद में तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
is equal to 75,400 divided by 24. 75,400 divided by 24, which comes out to be 3141.6667. 3142 लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 3142 अप्रॉक्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. कैलेंडर वेरिएंस is equal to SRR per day into budgeted days minus actual days, which is equal to 3142 एडवर्स ही आएगा क्योंकि बजट 24 दिन का किया था. नालायक वर्कर होने की वजह से सिर्फ 23 दिन ही काम हो पाया है. ओके, फिफ्थ वेरिएंस capacity is equal to SRR per hour budgeted hours for actual output, okay, minus actual hours worked. अभी यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट की जगह में आउटपुट पता नहीं है तो हम यहाँ पे डेज ले लेंगे. फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज. आउटपुट लेने का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला टैली होगा नहीं, डेज ही लेना पड़ेगा. विच इज इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड. विच इज इक्वल टू SRR पर आर हमें पता है 2.91. बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल वर्किंग डेज कितना पता चलेगा, 24 दिन में हमने 25/9/20 आवर्स काम किया. 23 दिन में कितना काम करना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका आंसर आता है 24,840. मैंने कैलकुलेटर पे अभी किया है, आप भी कर लो. 24,840 मैंने एक्चुअल आवर्स और 2500 हमारे पास है. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 12,629.4. एडवर्स हो गया फेवरेबल. फेवरेबल सोच रहे हो तो आप गलत हो, एडवर्स ही आएगा. 23 दिन में बजट किया था 24,840 घंटे काम करेंगे, असलियत में काम हुआ 20,500 घंटे ही. वर्कर नालायक निकले, काम कम किया, कम घंटे किया, तो ये एडवर्स आएगा. अभी सिक्स्थ वेरिएंस निकलेगा, एफिशिएंसी वेरिएंस, जो आसान है. SRR पर आवर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड आवर्स हमें पता है, एक्चुअल आवर्स पता है, SRR पर आवर भी पता है. माइनस 2500 नहीं 20,500. शॉर्ट में बोलने के लिए 2500 ऐसा मैंने बोल दिया था. विच कम्स आउट टू बी 5965.5. अभी यहाँ पे आप अगर एडवर्स सोच रहे हैं तो आप गलत हैं. यहाँ पे फेवरेबल है, ये स्टैंडर्ड है, बजट नहीं है. स्टैंडर्ड इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल एंड बजट इज ऑलवेज फॉर स्टैंडर्ड सेट. स्टैंडर्ड इतना 22,000 सोचा था, एक्चुअल 20,500 निकला, एक्चुअल कम है. ओके, सो ये फेवरेबल है. मतलब हमें एक्चुअल में हमने ज्यादा एफिशिएंसी हमारी दिखाई. जितना बॉस ने हमें बोला था 10 घंटे में प्रोजेक्ट खत्म करके चाहिए, हमने 8 घंटे में किया. हमारा बॉस हम पे खुश है, इसलिए वेरिएंस फेवरेबल है. सर ड्राइंग गंदा है मेरा, पर ठीक है, समझ लो. अभी वेरिएंस फेवरेबल है. ओके, तो ये यहाँ पे आंसर हमारा खत्म होता है. अगर टैली करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैली कर सकते हैं हम. ओके, हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना था, 13,179.5. हिंदी खराब है इसलिए बाकी के 3 डिजिट हिंदी में नहीं बोल पाया. ओके, उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस था 3,400 एडवर्स. वॉल्यूम वेरिएंस कितना था, वॉल्यूम वेरिएंस था 98
9806.5 सॉरी 9806 पॉइंट, हाँ सही है, 9806.5 लेंगे, राउंड ऑफ किया है उतना चल जाएगा। 9806.5 एडवर्स था, ये भी 13,000 का एडवर्स ही है। इसके वापस 3 पार्ट किए, ऐसा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। ये कैलेंडर है, ये कैपेसिटी है, ये एफिशिएंसी है। ओके, कैलेंडर वेरिएंस था 3142 एडवर्स था। हमारा कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो भी एडवर्स ही था। ओके, वो था 12,629.4। 12,629.4 की जगह 5 ले लीजिए, राउंड ऑफ करने के लिए इजी जाएगा, एडवर्स। ओके, और ये था 596.5 एडवर्स। 596, जस्ट सेकेंड, एफिशिएंसी वेरिएंस था 5965.5, फेवरेबल था ये, एडवर्स नहीं था। ओके, यस, इसको आप 4 कर दीजिए और इसको 0.6 कर दीजिए, तो अपने आप टैली हो जाएगा। मैंने बोला था राउंडिंग ऑफ में थोड़ा फर्क पड़ता ही है। 1.6, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर भी पॉइंट राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस दिल पे नहीं लेता। ओके ओके, thank you for today. Stay curious, keep learning, keep growing. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Please stay updated for further content. Thank you very much, all of you.